let's briefly have the introduction of today's panelists. It's me, myself, Mohammed Anwar Al Mustafa. I'm being a senior software engineer in the market, and luckily, as a founder of DataSeco, today I'm hosting the webinar. My mission is to educate and empower again the 100,000 students by the end of 2025. I am a speaker, founder, and a SaaS entrepreneur uh, with having over 7 years of experience in the data engineering and software engineering field. Moving ahead with the introduction of the big mind behind the DataSeco, Mr. Mohammed Osama Hamid, the founder of DataSeco and the data architect as a professional in his current position. His mission is to educate and empower 100,000 students in the market. Again, we are having the same mission together under the umbrella of DataSeco. He's a great speaker, an influencer, founder, and social entrepreneur with over 700 years of expertise in the data domain. He's again, luckily, it's our pride to be the top rated Upwork seller. Thank you, Anwar, for hosting today's event. And let's start today's event. Okay. तो आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स प्योरली अबाउट डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिसिस एंड somehow related to data science. The agenda for today's webinar is to know what is data, qualitative, quantitative data, what's the major difference, what the difference between data analysis and data analytics. Then there are further we have 4 different type of data analytics where we will discuss their different types, and then we will discuss 5 important steps regarding data analysis, what data analysts do in their field. Then in last we will discuss what's the major difference between data scientists and data analysts, and then we wind up this webinar in that how to become data analyst in 2024. So let's start. Okay. तो सबसे पहले we should know what is data. Data is simple information which we collect and help us to make decision, understand and learn things. तो बेसिकली डाटा कुछ भी हो सकता है जो हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, हमारे डिसीजन मेकिंग्स में हेल्प कर रहा हो, और वर्ड के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में हमारा हेल्प आउट कर रहा हो. दैट्स द सिंपल डेफिनेशन विच आई लर्न बैक इन 2017 जब मैंने डाटा साइंस स्टार्ट किया था, और अभी तक मेरे माइंड में ये क्लियर है. मतलब सिंपल लाइक इट्स द इंफॉर्मेशन. फर्दर वी हैव लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा. अब जब आप अगर डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट बनने जा रहे हैं तो यू शुड नो कि डाटा क्या होते हैं, उस डाटा की टाइप्स कितनी होती हैं, उस टाइप्स में फर्दर क्या डिवीजन होती हैं, और वो किस तरह से हमारा डाटा ऑर्गेनाइज हम जब ऑर्गेनाइज होगा तो वी कैन मेक एनालिसिस ऑन दैट, we can do science on that, machine learning, that's all the stuff. तो डाटा की 2 मेजर टाइप्स हैं, इस क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा. जैसे कि नेम सी मतलब क्लियर है कि क्वालिटेटिव इज रिगार्डिंग टू द कैटेगोरिकल डाटा, एंड क्वांटिटेटिव में हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आ रहा होगा. फर्दर वी हैव इन क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा. नॉमिनल डाटा सिंपली जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, और ordinal data is just is clear from the term is we have the certain order in our data. Let's come to quantitative data. Further we have descriptive data and continuous data. अच्छा, तो जो descriptive data is similar like we have our numerical numbers जिसमें कुछ भी नंबर हो सकते हैं, और continuous data is kind of we have the frictional number जिसमें हमारे पास ये कह सकते हैं केजीज लीटर्स ऑफ पेट्रोल से हाइट आ सकती हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल द डिटेल्स कि आज आपके जो भी डाटा के रिगार्डिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप लोगों को क्लियर हो जाए. मतलब आई
गारंटी के जब हमारा ये वेबिनार एंड होगा तो आपको बहुत सारी नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी, पर वो जितनी भी इंट्रोड्यूस होंगी आई विल मेक श्योर कि वो सारी आप लोगों को क्लियर हों। सो लेट्स कम टू डिटेल व्हाट इज क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा इज बेसिकली कैटेगोरिकल डाटा, जिसमें हमारे पास कैटेगरीज बन रही होती हैं। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नॉमिनल डाटा, जिसमें कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, सिंपल वी हैव द जेंडर। इसी तरह से हमारे पास फर्दर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे पास कुछ भी वैल्यूज या इस तरह से कह सकते हैं कि डाटा हो सकते हैं जिसमें ऑर्डर ना हो, और वो यू कैन से लाइक वी हैव द फेयर सब्जेक्ट्स जिसमें ऑर्डर ना हमारे पास एक आ रहा हो। So that's the nominal data, and ordinal data में we have the pattern। मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि we have the class system, grade system, रेटिंग, क्योंकि हमें पता है रेटिंग 1 से 5 ही होगी, और उसमें 1 का मतलब लोएस्ट है और 5 का मतलब हाईएस्ट है। तो डेट्स द मतलब ये कह लें कि एक ऑर्डर होगा उस डाटा में। अब ये जो जब ये हम फर्दर एनालिसिस करने जा रहे होंगे, वी हैव दीज डिफरेंट कॉलम्स, जब हमारे पास डाटा में डिफरेंट कॉलम्स आ रहे होंगे तो हमने इनकी टाइप्स के मुताबिक इनको डील करना होगा, क्योंकि जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है इस दे डू नॉट नो कि आपका किस टाइप का डाटा है। यू आर अ डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने जब अपना मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है तो उसमें किस टाइप का डाटा है और उसको मैंने किस तरह से अरेंज करके मशीन लर्निंग मॉडल को देना है। वी विल डिस्कस कि वो फर्दर कि किस तरह से सारी चीजें होंगी। लेट्स कम टू क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा इज सिंपल न्यूमेरिकल डाटा, जैसे हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, लाइक दे आर इन प्रॉपर होल नंबर्स। और कॉन्टिन्यूस डाटा में हमारे पास फ्रिक्शनल नंबर्स आ रहे होते हैं, डेसिमल्स नंबर आ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लाइक वी हैव एवरेज हाइट, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स में आ सकती हैं। वी हैव फर्दर किलोग्राम्स, जिसमें कंटिन्यूसली डाटा पॉइंट्स में आ रहा है, तो उसमें कोई होल नंबर नहीं आ रहा। दैट्स द मेजर डिफरेंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा में। फर्दर लेट्स डिस्कस कि मतलब ये दिखता कैसे है। तो हमारे पास एक मैंने सैम्पल डाटा, स्टूडेंट डाटा, एक डाटा सेट उठाया है। वी हैव लाइक दिस इज द डाटा, स्टूडेंट आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहे हैं, ग्रेड, इस रेटिंग आ रही है, नंबर ऑफ बुक्स दे रीड्स, एवरेज स्कोर आ रहा है, एंड देर हाइट आ रही है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जब भी आप कोई एनालिसिस बनाने जा रहे होगे तो उसमें आईडी, स्टूडेंट आईडी एंड नेम इज इरेलीवेंट, मतलब उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। इसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में आपने देखना है कि कितने मतलब कितने जेंडर्स, मतलब फॉर द मेल कितने, फीमेल कितनी है, उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स कितने हैं। अब ये तो आप नहीं देख रहे होंगे कि नाम उसामा के नाम के कितने उसामा है, दैट्स नॉट मेकिंग अ सेंस। तो हमारे पास अगेन हम दोनों मतलब नेम आईडी हम अपने ये कह लें कि रेफरेंस के लिए रख रहे होते हैं, एंड द नेम इज नॉट रेलिवेंट। जो अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है इस जेंडर। अब देखें इस जेंडर में हमारे पास बेसिकली दीज आर द, if we go back, these are the nominal data, like क्वालिटेटिव में हमारे पास नॉमिनल डाटा आ रहा है जेंडर्स में, मेल फीमेल, ये जो कॉलम है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नॉमिनल डाटा में। फर्दर फेवरेट सब्जेक्ट सिमिलर नॉमिनल डाटा, वी हैव नॉट रिलेशन, मतलब मैथ साइंस हिस्ट्री का कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई आपको एक इनसाइड नहीं दे रहा। फर्दर वी हैव ग्रेड लेवल्स, अब ग्रेड लेवल्स एंड वी हैव रेटिंग। अब फर्दर दे हैव द रिलेशन, मतलब रिलेशन इन सेंस कि एक ऑर्डर बना है। अगर हम अपने डाटा को फर्दर डाटा एनालिसिस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यार इस डाटा में ऑर्डर है, तो हम फर्दर उस तरह से इसको ट्रीट कर रहे होंगे। इसी तरह से रेटिंग आ गई। फर्दर नाउ मूविंग ऑन, अच्छा अब हम आते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा पे। उसमें हमारे पास वी हैव लाइक, वी गो बैक, वी हैव डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। अब इसमें वी हैव द डिस्क्रीट डाटा जहाँ पे होल नंबर आ रहे हैं एंड इट्स नॉट मेकिंग एनी रिलेशन। तो आपको ये देख के पता लग जाएगा कि यार ये वाला जो कॉलम है ये इस मतलब क्वांटिटेटिव में हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही थी, तो इस तरह से आप डील कर रहे होंगे। फर्दर वी हैव लास्ट टू कॉलम्स इज कॉन्टिन्यूस, एंड हेयर इज द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कितने टाइप के डाटा होते हैं, उसमें फर्दर किस तरह की टाइप्स होती हैं, और फर्दर किस तरह से डाटा हमारे पास डिवाइड होता है। अब हमें
ये कह लें कि बेसिक तो क्लियर होगी कि डाटा होता क्या है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, फर्दर उसमें कितने पैटर्न्स पाए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, कि अब इस डाटा का बेसिक जब क्लियर हो गया, अब हमने उस पर करना है एनालिसिस करना है कि एनालिसिस डाटा, व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिसिस। अब इन दोनों में से जो मेजर डिफरेंस हैं, जो कि अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, दे वांट टू बिकम डाटा साइंटिस्ट, बट अगर उनसे पूछा जाए कि यार आप आपके डाटा एनालिसिस कैसे हैं, या आपकी डाटा एनालिसिस के बारे में क्या राय है, तो दे विल मतलब वो कहेंगे हम इस पे काम नहीं कर रहे, या हमें थोड़ा बहुत पता है कि सिर्फ उस पे एनालिसिस होता है। तो सबसे जो मेन कोर कंपोनेंट है डाटा साइंस का इस डाटा एनालिसिस। अगर मैं भी इंडस्ट्री में, जब मैंने स्टार्ट किया, तो इंडस्ट्री में भी 70% टाइम वी आर डूइंग डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिटिक्स थिंग। एंड देन जब हमारा सारा डाटा रेडी हो जाता है, जब एक डाटा साइंटिस्ट या डाटा प्रोफेशनल अंडरस्टैंड कर जाता है अपने डाटा को किस तरह से, उसके बाद आप लगाते हो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, एंड देन यू आर गोइंग टू एडवांस टेक्निक, जहां पे आप अपनी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ जा रहे होते हो। तो उससे पहले हमें डाटा एनालिसिस क्लियर होना चाहिए। डाटा एनालिसिस सिंपल टर्म है, मतलब अगर आपने याद रखना, तो डाटा एनालिसिस हमारे पास इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अंडरस्टैंड में हेल्प आउट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हुआ 2 साल पहले, या कुछ भी पास का इवेंट को हमने अगर उस पर एग्जामिन करना है या उस पर एनालिसिस करना है, दैट्स कॉल्ड डाटा एनालिसिस। फर्दर वी हैव लाइक इट्स रिलेटेड टू ऑलरेडी अगर इवेंट जो हमारे पास में हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, उसकी लास्ट समर की सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी। अब वो हमसे पूछना चाह रहा है कि किस तरह से, मतलब आप डाटा एनालाइज करें और मुझे बताएं कि क्या रीज़न थी उसके मतलब मेरी सेल्स क्यों कम हुई थी। तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसके फैक्टर्स लेंगे कि सच है मार्केट ट्रेंड क्या था पिछले साल, या हो सकता है कि लेट्स अज्यूम द एग्जांपल के लास्ट दफ़ा महंगाई बहुत थी, या वी कैन से कि कोई जैसे कोविड-19 आ गया था बीच में, कोई इस तरह से इवेंट आ गया, दैट्स द रीजन कि आपकी मार्केट का जो ट्रेंड था ओवरऑल काफी डाउन रहा है। उसके बाद कस्टमर फीडबैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम उसे कह सकते हैं कि यार जो आपके पास में लास्ट ईयर जो आपने ये ब्रांड का ये जो स्पेसिफिक आइटम है ये लॉन्च किया था, तो इस पे कस्टमर्स का फीडबैक क्या रहा है, कि आपके आया, क्या वो ब्रांड को पसंद कर रहे भी हैं या ना। तो दैट्स ऑल द रीजन कि आप पास के डाटा को एनालाइज करके उसको डिसीजन बना रहे होते हो कि यार दैट्स द रीजन जिसके बेसिस पे आपकी कंपनी की सेल्स ड्रॉप हुई थी। और ये सारा प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। मतलब इतना सिंपल है डाटा एनालिसिस के पास के इवेंट्स को, आप अगर इसको रिलेट करें तो आपको कोई भी पूछेगा आपको सिंपल क्या है कि पास के इवेंट्स पे अगर कोई भी एनालिसिस करना हो, या कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि यार मेरी पिछले साल की सेल्स बताओ, तो इट्स रिलेटेड टू डाटा एनालिसिस। नाउ मूविंग टू डाटा एनालिटिक्स। अब जिस तरह से डाटा एनालिसिस पास के इवेंट्स को डील कर रहा था, जो डाटा एनालिटिक्स है इट्स डीलिंग विद द फ्यूचर इवेंट्स, कि अब फ्यूचर में क्या होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने सारा अपनी सेल्स टीम से, मैंने डाटा एनालिसिस वाली टीम से मैंने पूछ लिया मेरे क्या क्या फैक्टर थे, उसने बता दिया कि ये चीज़ें हुई, और इसकी वजह से डाउन हुआ। अब मैंने अपनी सेल्स को फ्यूचर में इंप्रूव करना है, मैंने अपनी सेल्स को बढ़ाना है, और मैंने उस तरह से स्ट्रेटजीज बना रही हैं कि आने वाले 1-2 साल से मेरा ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करे। तो दैट्स वेयर डाटा एनालिटिक्स कम, जहाँ पे आप फ्यूचर पे एनालिसिस कर रहे होते हो, यू आर मेकिंग एंड एग्जामिनिंग डिफरेंट पैटर्न्स इन योर हिस्टोरिकल डाटा, क्योंकि आप हिस्टोरिकल डाटा को देख के ही आप फर्दर फोरकास्ट कर सकते हो। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप एनालिटिक्स करने जा रहे हो यू शुड नो, मतलब आप एक कम्बिनेशन बनता है, मतलब एक डाटा साइंटिस्ट इज द कम्बिनेशन ऑफ डाटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। आप फर्दर मतलब उस तरह से एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे होते हो, और जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो उसके बाद यू आर क्रिएटिंग योर फर्दर, उसमें फिर आप प्रेडिक्टिंग मॉडलिंग की तरफ जा रहे होते हो, और अपने डाटा, पास वाले डाटा को देख के फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे होते हो कि क्या होता है। तो दैट्स द मेजर, अगर आपको कोई भी फॉर एग्जांपल फ्यूचर के बारे में कोई भी पूछे, तो इज कॉल्ड डाटा एनालिटिक्स, सिंपल। अच्छा, अब डाटा एनालिटिक्स में फर्दर वी हैव 4 मेजर डोमेन के डाटा एनालिटिक्स 4 हिस्सों में फर्दर डिवाइड है कि किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मतलब वर्ड क्लियर कर रहे हैं कि यार व्हाट हैपेंड, मतलब पास में क्या हुआ, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम समथिंग। देन वी हैव डायग्नोस्टिक, लाइक व्हाई इट्स हैपन, जब हमें पता लग गया ये क्यों हुआ, अब हम जा रहे हैं ये क्या, इसकी वजह क्या थी। देन जब हमें वजह पता लगी, देन वी कमिंग टू प्रेडिक्टिव कि यार अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि आपके साथ ये चीज़ें हमारे पास फैक्टर्स हैं, हमने डायग्नोस कर लिए हैं, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन वी हैव प्रिस्क्रिप्टिव, इसमें वी प्रिस्क्राइब और द क्लाइंट और या ब्रांड या किसी भी बंदे को हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि अब आपको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए या आपको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। दैट्स द मेन फोर टाइप ऑफ डाटा एनालिटिक्स। इसको दोबारा एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब इधर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको ये चारों टर्म्स दोबारा मतलब कभी भी नहीं भूलेंगी। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर। मतलब आप आपके घर में एक मरीज है शुगर का, एंड आप डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर इज गोइंग टू चेक द लास्ट, पूरे जो लास्ट ईयर्स की सारी रिपोर्ट्स को देखे हैं उसने, उसको ट्रेंड उसने ऑब्जर्व किए हैं, और उसको पता लग गया है कि डेट्स द, मतलब अब वो एनालाइज कर रहा है और वो आपको बता रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट इस तरह से थी, आपकी सारे उसने एनालाइज किया कि किस किस महीने में बढ़ा, क्या क्या रीजन थी। दैट्स द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, दिस इज अबाउट व्हाट हैपेंड, मतलब क्या क्या हुआ है। देन वी हैव लाइक डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, इसमें क्या करेगा डॉक्टर, आपकी डिटरमाइन करेगा कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर था वो हाई हुआ था। उसमें उसको वो पता लगा कि द मेन रीजन इज पुअर डाइट एंड मिस मेडिसिन, कि उसने अपनी डाइट भी पुअर रखी और मेडिसिन भी मिस की। दैट्स द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के हम डायग्नोस कर रहे हैं, अब डॉक्टर जाके उसको डायग्नोस कर रहे हैं कि ये रीजन थी जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ। सिंपल, मतलब आप, इतनी आसान एग्जाम्पल है कि आप भूलेंगे ही नहीं इसको। ओके, अब फर्दर जब उसको डायग्नोस कर दिया, अब डॉक्टर उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी कंडीशन सही ना की तो आपको फर्दर इन फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं, मतलब आपका बीपी बढ़ सकते हैं। वी हैव लाइक कपल ऑफ different you can say diseases in Pakistan and all over the world. Now and they are like simply forecasting what might be happen in future, predict कर रहा है। जब डॉक्टर ने प्रेडिक्ट कर लिया, अब उसके बाद नो सबसे फिर दे आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब समथिंग, कि यार अब आपको ये सारी चीजें हो गई हैं, आपको मैंने बता दी फ्यूचर में क्या होगा। अब मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर आपने अपनी हेल्थ को सही रखना है और शुगर के हाई रिस्क से बचना है, तो टेक दैट मेडिसिन, दैट्स द सजेशन फ्रॉम डॉक्टर साइड, कि फ्यूचर में आपके साथ ना ये चीजें ना हो। तो अब स्टार्ट अगेन दोबारा के डॉक्टर ने पहले आके हमें, मतलब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें डिस्क्राइब किया कि क्या क्या वो थी, डिजीज क्या थी। उसके बाद डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि क्या क्या किस रीजन की वजह से आपको शुगर हुई और क्यों ये दोबारा इंक्रीज कर गई। उसके बाद डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया कि अब अगर फॉर एग्जांपल आप यही अपनी रूटीन फॉलो करते हैं तो आपके साथ फ्यूचर में क्या हो जाएगा। एंड देन लास्ट वो आपको सजेशन दे रहा है कि यार अगर आपने फ्यूचर में अपने आप को बेटर करना है, प्रिस्क्राइब दे आर प्रिस्क्राइबिंग समथिंग कि इफ यू वांट टू प्रिवेंट योर हेल्थ इश्यूज तो टेक दैट मेडिसिन। दैट्स द होल समरी के, मतलब इसमें क्या हो रहा होता है। मूविंग अहेड, अच्छा अब इसकी डाटा सेट की एग्जांपल देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब वो बंदा, फॉर लेट्स अज्यूम जॉन था, उसका लास्ट मंथ का लास्ट ईयर का जो था ब्लड प्रेशर 150 था। देन वी हैव लाइक स्मिथ 130, एलेक्स 160। ठीक है, अब इसकी सबकी शुगर लेवल आ रहे हैं। अब इसकी डाइट क्वालिटी फर्दर डॉक्टर ने चेक की, ये तो उसने हो गया हमारा पास सबसे पहला स्टेप, कि डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन दे के डिस्क्राइब किया, फिर डायग्नोस किया कि क्या वजह है। उसकी पुअर डाइट थी, इस बंदे की अच्छी डाइट थी, और इसकी मॉडरेट डाइट थी। इस तरह से अब इसको, इसकी लास्ट ईयर की और इसको करंट इसके सिचुएशन देखने के बाद डॉक्टर इसको मतलब बता रहे हैं कि अब तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। फर्दर उसको बताते हैं कि यार जो जॉन है, यू आर ऑन हाई रिस्क, क्योंकि तुम्हारी जो बीपी है और शुगर है वो भी हाई है और तुम्हारी डाइट भी पुअर है, तो तुम्हारा शुगर लेवल तो हाई जाने वाला है।
तो टेक डैट मेडिसिन ऑन टाइम, अपनी डाइट इंप्रूव करो, रेगुलर मेडिसिन लो, डैट समथिंग दे आर प्रिस्क्राइबिंग, उसको प्रिस्क्राइब कह रहे हैं कि यार ये चीज़ें आप लो। स्मिथ है, उसका बीपी भी सही है और उसकी मेडिकेशन भी वो टाइम पे ले रहे हैं, एंड उसका जिसकी वजह से उसका रिस्क लो हो गया। अब उसको कहा है कि यू यू कैन मेंटेन योर करंट मेडिसिन एंड फूड, तो आपको फर्दर इन फ्यूचर में ये कह लें कि प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्दर वी हैव दिस पर्सन मॉडरेट, इसको डॉक्टर ने रिव्यू कहा है कि रिव्यू करो और मेडिसिन अपनी इम्प्रूव करो, डाइट इम्प्रूव करो। डेट्स द सिंपल एक एग्जांपल जिससे आपको एक आइडिया होगा कि डाटा दिखता किस तरह से है, होता क्या है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अच्छा अब हमने सारा एनालाइज कर लिया, लेट्स रिवाइंड के हमने देख लिया कि डाटा होता क्या है, डाटा कितने टाइप्स का होते हैं, उसमें क्या क्या ऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। देन वी नो कि डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस हैं। एंड देन हमने फर्दर डिस्कस की डाटा एनालिटिक्स में क्या क्या डिफरेंट 4 टाइप ऑफ डोमेन्स हैं या उसकी टाइप्स हैं। अब वो सारी चीज़ें जब हमने देख ली, अब नाउ द क्वेश्चन कम कि हम उसको स्टार्ट किस तरह से करें। मतलब हर बंदा कंफ्यूज होता है कि एक पूरा रोड मैप दो कि हमें बताओ कि डाटा एनालिसिस में होता क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, मतलब जिस तरह से वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ स्टोर, जहाँ पे एक स्टोर वाला आया और वो हमें कह रहे हैं कि मेरी सेल्स लास्ट ईयर डाउन जा रही हैं। उसका प्रॉब्लम है कि उसके अपनी सेल्स बढ़ानी है और उसकी सेल्स डाउन है। तो डेट्स द क्वेश्चन, हम उसे क्वेश्चन पूछेंगे यार क्यों सेल्स डाउन है और क्या क्या फैक्टर्स थे। डेट्स द होल रिलेशन के हम वहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, उसके प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे होंगे और पूरा एक डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे। अब जब डॉक्यूमेंट बन गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका हम डाटा कलेक्ट करेंगे। वो डिफरेंट डेटाबेसेस में हो सकते हैं, डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं। वी हैव डिफरेंट डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, पर एक ओवरव्यू में आपको दे दूंगा कि डाटा कलेक्शन में हो रहा क्या होता है। बेसिकली उनके डाटा सेट्स हम उठा के अपनी जगह लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि हमने उस पर एनालिसिस करना होता है। अलग अलग जगह पर अगर डाटा पड़ा होगा तो हम एनालिसिस डेफिनेटली कर नहीं सकेंगे। अब जो क्लाइंट का डाटा होता है इस रॉ, मतलब उसमें क्लीन डाटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको डिस्कस किया पीछे, नॉमिनल डाटा था, ऑर्डिनल डाटा था। तो ये जो कैटेगोरिकल डाटा होते हैं जिसमें मैन सॉरी जेंडर्स आ रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फाबेट्स आ रहे होते हैं, वो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल नहीं लेता। बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल्स को न्यूमेरिकल डाटा चाहिए होता है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट थिंग। तो वहां पे क्लीनिंग आ रही होती है, कुछ आउटलायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आया, किसी ने अपनी हाइट वो एज डाल दी 150, उसने लिखनी 50 थी और बाय डिफॉल्ट 150 लिख दी। अब वो हमारे डाटा सेट में आउटलायर हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो हम डाटा सेट में रखते हैं और एनालिसिस करते हैं, तो 150 की वजह से हमारा टोटल एवरेज जो है ना पूरे डाटा सेट की एज की चेंज हो जाएगी। तो हमने वो आउटलायर को अलग करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें हमने बाय निकाल ली हैं। अब जब डाटा क्लीन हो गया, ये सारी चीज़ें निकल गई, अब हमने करना है डाटा एनालिसिस। उस पर डाटा एनालिसिस कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वी हैव analysis techniques, and then we are applying a machine learning model, predictive modeling उस पे कर रहे होंगे। एंड देन वी आर लाइक सब कुछ करने के बाद हम विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे, अपनी फाइंडिंग शेयर कर रहे होंगे क्लाइंट के साथ, क्योंकि क्लाइंट इज नॉट टेक्निकल। उसको नहीं पता कि मशीन लर्निंग मॉडल कौन सा आपने लगाए हैं, किस तरह से लगाए हैं, अपने आउटलायर क्या होते हैं। दे आर कंसर्न विद देयर डैशबोर्ड्स कि उनके बीआई पे उसको क्या देखना चाहिए। उसको पता लगना चाहिए कि यार आज की मेरी सेल कितनी हुई है, और फर्दर उसको पता होना चाहिए कि आज कौन सी मेरी आउटलेट ने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं, किसने सबसे कम सेल की हैं। डेट्स समथिंग सीईओ डैशबोर्ड में होना चाहिए। तो वहाँ पे हम उसको वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं। डेट्स सम डेट्स मतलब सिंपल प्रोसेस हम डाटा एनालिसिस में कर रहे होते हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का, और मेरे से लास्ट 2 या 3 ईयर से लोग पूछते हैं कि मतलब अभी भी हमारे से पूछ रहे होते हैं कि डिफरेंस क्या है डाटा एनालिस्ट में, डाटा साइंटिस्ट में, डिफरेंस क्या है। अभी भी बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार आई हैव गॉट कपल ऑफ मैसेजेस, एंड हमारा हर फ्राइडे क्वेश्चन आंसर्स का ये क्या सेशन होते हैं, जिसमें यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू रोल्स आर देयर प्राइमरी फोकस, जहाँ पे हम फर्स्ट डाटा एनालिस्ट डाटा को एनालाइज कर रहा होता है और विजुअलाइज कर रहा होता है और इनसाइट्स निकाल रहा होता है।
अब उसमें उसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो डाटा को एक्सप्लोर करना है, क्लीन करना है, एनालाइज करना है, एंड देन विजुअलाइज एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट या सीईओ, जिसको भी कह लें। इसके लिए जो हमें स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो एसक्यूएल है, पाइथन है। आर इज ओल्ड बट स्टिल इन इंडस्ट्री। पाइथन इज ट्रेंडिंग बिकॉज सारी इसमें लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। देन वी हैव एक्सेल। एक्सेल में भी लोग अभी एनालिसिस कर रहे होते हैं। देन वी हैव लाइक डिफरेंट डाटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड। आपने टेबलो का बड़ा सुना होगा, पावर बीआई का बड़ा सुना होगा, इसमें डैशबोर्ड्स बन रहे होते हैं। एंड इसमें सारा कुछ ये चीज़ आ रही होती है कि मतलब हमारा डाटा एनालिस्ट ये चीज़ कर रहा होता है। अब डाटा साइंटिस्ट जो मेन, अब डाटा साइंटिस्ट हमने माइंड में रखना है कि डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं ना, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट यू आर डूइंग 70% ऑफ डाटा एनालिसिस थिंग, कि आपने 70% डाटा एनालिसिस वाली चीज़ें भी करनी है। एंड देन आपने जब डाटा को एनालाइज कर लिया, डाटा को अंडरस्टैंड कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू डू अ साइंस थिंग, नाउ यू गोइंग टू मेक अ मशीन लर्निंग मॉडल। अब उसमें हम जो प्राइमरी फोकस जो होते हैं डाटा साइंटिस्ट का, वो होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पे, कि वो प्रिडिक्टिंग मॉडल जाके बना रहा होता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स सजेस्ट कर रहा होता है कि कौन सी मॉडल लगनी चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम है हमारे पास, और एनालाइज कर रहा होता है। बेसिकली पाकिस्तान में या बाहर भी इन दोनों रोल्स को दे आर लाइक ट्रीटिंग वन रोल। कई ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों डिफरेंट रोल्स होते हैं, पर दे आर कोऑर्डिनेटिंग इन वन एम्ब्रेला, जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, बिकॉज एंड गोल इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग डाटा। फर्दर हमारे पास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाटा साइंटिस्ट में आती हैं। दे आर डूइंग एडवांस स्टैटिकल मॉडलिंग, बिल्डिंग देयर मशीन लर्निंग मॉडल, ट्यूनिंग इट, एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग में लाइन बाय लाइन कोड की टेस्टिंग हो रही होती है। दैट्स डाटा साइंटिस्ट इज डूइंग। इसमें हमारे पास अगेन वही सारा कुछ एसक्यूएल, पाइथन आ रहा होता है। जो मेन जो ये चीज़ें लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये आ रही होती हैं। फर्दर इसमें हमारे पास एडवांस एनालिटिक्स आ रही होती हैं। एडवांस एनालिटिक्स काइंड ऑफ यू कैन से कि हमारे पास टेक्स्ट एनालिसिस आ सकते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस आ सकते हैं। वी हैव डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग तो आ रही होती हैं। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू रोल्स। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आई मतलब मैंने कोशिश की इनको बहुत सिंपल करके ना आप लोगों को प्रेजेंट किया जाए कि आप लोग भूलें ना। अब हो रहा क्या होता है, वी हैव लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं, ही इज डूइंग द 70% जॉब ऑफ डाटा एनालिस्ट। अब जो एक डाटा साइंटिस्ट हैं इज द बिग सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को कह सकते हैं कि वी हैव द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्कल। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर्कल सर्कल है, और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है डाटा एनालिस्ट का, और वो चीज़ें ये कह रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फर्दर उसके ऊपर उसी एनालिस्ट पे जो डाटा साइंटिस्ट हैं, दे आर डूइंग डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई, दिस थिंग। तो पूरा जो एक हमारे पास डे एंड पे एक सर्कल बनता है, उसमें दोनों का पार्ट कंबाइन होता है, एंड इट्स बिकम अ डाटा साइंटिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। इस पे हमारे पास तीन चीजें हो रही होती हैं, एक पास्ट की हो रही होती है, फ्यूचर की हो रही होती है, एंड बीच में डाटा एनालिस्ट हो रहा होता है। दोनों का वो ब्रिज बनता है, एंड देन दे आर डूइंग द कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। मतलब पास्ट में बीआई एनालिस्ट आता है, जो भी आपकी रिपोर्टिंग होती है वो हमेशा पास पे हो रही होती है, कि मैंने अपनी लास्ट ईयर की सेल देखनी है, लास्ट 6 मंथ की सेल देखनी है, लास्ट मंथ की सेल देखनी है, इवन की लास्ट डे की सेल देखनी है। तो सारी जो रिपोर्टिंग हो रही होती है इज बिकम द पास्ट। मतलब अगर वो 5 मिनट भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट भी आपकी रिपोर्टिंग लेट है फ्यूचर से, मतलब आज फॉर एग्जाम्पल वी हैव 8:40 और 8:35 की रिपोर्टिंग है, देन वो भी हमारे पास पास्ट की ही होगी। मतलब वो बीआई एनालिस्ट कर रहा होता है, उसमें रिपोर्टिंग्स होती हैं, एनालिसिस होते हैं। देन फ्यूचर में हमारे पास डाटा साइंटिस्ट आ रहा होते हैं, वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर रहा होता है, मशीन लर्निंग कर रहा होता है, और इन दोनों का जो ब्रिज होते हैं वो हमारे पास डाटा एनालिस्ट कर रहा होते हैं। इन दोनों का ब्रिज बन रहा होता है, और उसमें वो फर्दर जो आपको मैंने बताया कि वो किस तरह से दोनों को कंबाइन कर रहे होते हैं ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू बिकम डाटा एनालिस्ट। सो हियर इज माय 5 स्टेप सिंपल। मतलब इसमें बहुत सारे हमारे पास आप देख रहे होंगे, बहुत लंबे लंबे रोड मैप्स होंगे, पर दीज आर द एसेंशियल स्किल्स, कि अगर हमें ये चीज़ें आती हैं, वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट आवर कैरियर, वी कैन गेट
opportunity, we can land any internship or we can even land full time job. तो उसमें सबसे पहले आपके पास आती है पाइथन. We should start from Python, then we master SQL, then we are going to understand stats सिंपल वाली, मतलब इसमें मीन मीडियन मॉड आ रहे होते हैं जो कि हमने 9-10 में पढ़े थे, 6-7 क्लास में पढ़े थे. मतलब डेट्स द स्टैट्स जो कि इवन हम अभी तक यूज कर रहे होते हैं अपनी बेसिक एज अ डाटा एनालिसिस में. फर्दर वी हैव लाइक डाटा एनालिसिस टूल्स एंड लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन पांडास, numpy. Pandas is basically dealing with CSV file. Further, we have NumPys. Then we have PySpark. PySpark is like for relating the big data, मतलब जिसमें आपके पास GBs of data है, उसको अपने उस पर डाटा एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे पांडास आपका फेल हो जाएगा, मतलब वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. तो हम इसलिए हमको हम स्पार्क पे चला रहे हैं. बेसिकली PySpark इज फॉर बिग डाटा, तो उसको यूज करते हुए हम डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं. देन वी हैव डेवलप विजुअलाइजेशन. फॉर विजुअलाइजेशन हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड. दीज आर द सिंपल लाइब्रेरीज जो कि हम पाइथन में यूज कर रहे होते हैं कोड करके, और विजुअलाइजेशन डिफरेंट कर रहे होते हैं. Further, we have Power BI and Tableau. These are independent entities, और यहाँ पे they are providing dashboards. Similar like Excel. Excel को मैंने इसलिए ऐड नहीं किया because market is going towards like these tool. आप अगर आप LinkedIn पे भी देखेंगे तो every job must have these 5 things, कि आपको ये हर जॉब में ये 5 चीजें तो मिलेंगी. डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट में भी इवन को रिलेट कर रही होंगी ये चीजें. दीज आर द 5 एसेंशियल थिंग कि आप ये चीजें स्टेप बाय स्टेप सीख के स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैरियर. ओके, सो लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके लिए टिप क्या है. तो जब आपने ये चीजें सीख ली, नाउ इस अब बारी आती है हमारे पास प्रैक्टिस की, कि हम रियल डाटा पे प्रैक्टिस कर रहे हो अभी. इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट इन मार्केट या इंडस्ट्री में नहीं है या जॉब नहीं कर रहे, still you have the opportunity to work on real data, क्योंकि you know the data is new oil of 25 century. मतलब आप देखा होगा कि कोविड के बाद ऑयल की प्राइसेस कितनी कम हुई. बाकी हमारे पास गोल्ड, स्टॉक एक्सचेंज, एवरीथिंग गोज डाउन. सिर्फ डाटा था जो कि इंक्रीज हुआ, जिस पे लोगों ने एनालाइज किया. बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी स्टार्टअप्स बने. तो कैगल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इवन आई यूज टुडे, कि जहाँ पे आपका रियल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आप वहाँ पे सिंपल आप डाटा सेट लो, वहाँ पे उसको प्रैक्टिस करो. ऑलरेडी लोगों की नोटबुक्स बनी हैं. यू शुड स्टार्ट, मतलब उसको रीडिंग, आपको जाके देखो कि यार ये इसमें कर रहा क्या है, किस टाइप का एनालिसिस हो रहा है. आपको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार इस तरह के भी एनालिसिस हो रहे होते हैं. तो बेस्ट प्लेटफॉर्म इज कैगल. गिटहब भी हैं, बट अगेन द कैगल इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन मिल रही होती है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. दैट्स द रीजन आई रिकमेंडेड कि आप कैगल पे जाएं. देन अब जब आपने कैगल स्टार्ट कर दिया, यू हैव द रियल डाटा सेट. नाउ इट्स कम टू मेक योर प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़े से मतलब एक बड़ा सा कह सकते हैं, या एडवांस लेवल का कह सकते हैं, या मीडियम लेवल का कह सकते हैं, क्योंकि वो आपने शोकेस करवाना है. अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे डाटा डाटा एनालिसिस आ गया है. आई अटेंडेड द डाटा सीको वेबिनार. उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मुझे टर्म्स बताई हैं. नाउ आई गॉट क्लियर. इवन कि आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. तो आपने कैगल पे भी काम किया, ठीक है. आपने फर्दर बहुत सारी, फॉर एग्जांपल आपने कोई कोर्सेज लिए, यूट्यूब से सीखा. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे, दे विल आस्क अबाउट योर प्रोजेक्ट, कि आपने रियल में क्या किया, आपने आपकी क्या प्रोजेक्ट थे, आपकी उसमें इंसाइट्स क्या थी, आपकी डिफरेंट टेक्निक्स क्या थी, आपने क्या सीखा उसमें. और रियल जो लर्निंग हो रही होती है वो आपकी प्रोजेक्ट्स में हो रही होती हैं. जब आप प्रोजेक्ट्स आपके, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोजेक्ट किसी बंदे के भी आप उठा रहे हैं, उठाएं, उसको अंडरस्टैंड करें, उनको एनालाइज करें सिंपल, कि यार इसमें कर रहा क्या है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं. अब उस चीज़ को आप डिफरेंट अपने वे में, कि यार इसने फॉर एग्जांपल तीन तीन तरीकों से किए हैं, व्हाई नॉट आई ट्राई कि 2-3 और तरीकों से कर सकता हूं मैं. तो डेट्स हाउ
यू स्टार्ट लर्निंग और आपके प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। और मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गिटहब पे जाके इफ यू सर्च डाटा एनालिसिस एडवांस या इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स, बिगिनर नहीं करना, क्योंकि बिगिनर का कोई फायदा नहीं है, ना कोई पूछता है। आपने दोनों ये बस स्टार्ट करें, इवन एटलीस्ट आप जब स्टार्ट करेंगे आपको समझ आने लग जाएगी कि किस तरह से है। देन यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अस, हम अवेलेबल हैं, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। और लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है विच जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2017 में, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वी हैव नॉट अवेयरनेस, डाटा का इतने अवेयरनेस भी नहीं थी। वही मतलब आफ्टर कोविड सब पूरी इंडस्ट्री चेंज हुई, मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, डाटा एनालिसिस डाटा की साइड पर लोगों का रुझान बहुत बढ़ा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ना इस इंडस्ट्री में, अगर इफ यू वांट टू ग्रो, इज टू डू योर नेटवर्किंग, ज्वाइन कम्युनिटीज, जैसे आपने आप लोगों ने डाटा सीखो में है, यू आर लर्निंग मैनी न्यू थिंग्स, यू कैन कनेक्ट विद इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स जो आपको गाइड कर रहे हो, आपको बता रहे हो। मेरे केस में इट्स टेक 1.5 year टू अंडरस्टैंड होल दीज थिंग्स जो आपको मैंने आज एक्सप्लेन की, आपको मैंने बताई हैं। इट्स टेक 1.5 year, क्योंकि मुझे पता नहीं था किस तरह से करना है। इवन जो मेरे सीनियर से, दे बिकॉज उस वक्त ट्रेंड नहीं था, दे नो द डाटा बट इन डिफरेंट पार्ट्स। इट्स टेक टाइम टू ग्रिप ऑन एंड टू एंड जर्नी, आपको पता लगे कि एंड टू एंड हो रहा क्या है, किस तरह से जाना है, इवन का आपको कोई गाइड करने वाला हो कि यार इस तरह से। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्रोफेशनल, कि आप अपने किसी भी मतलब आप यू कैन कनेक्ट विद योर यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन फॉलो, मतलब आप तो लिंक्डइन पे बहुत सारी वी हैव माशाल्लाह nice people, they are creating content. That's how we grow, and these are the most important my personal tips for you to succeed in this career. Okay, thank you from my side. Mr. Mar, can you take? Yeah, sure. Very well versed, and thank you so much for giving that insightful talk to all of us. And now we are heading towards the right end of the webinar, but before that, we are going to make some announcements. लास्ट टाइम भी सबको ये चीज़ बताई गई थी, गिव अवे फॉर्म है हमारा एक, जिसको आपको फिल करना होगा एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार। आपको एक फॉर्म अपीयर होगा जिसको कि आपने फॉर्म को फिल कर लेना। और बेसिकली जैसे उसामा ने ऑलरेडी बताया कि वी आर प्रोवाइडिंग from the platform of Data Seeco one-to-one mentorship of 15 for this 15 students. बेसिकली 15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का मकसद क्या है कि ताकि दैट मस्ट बी क्वालिटेटिव, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। टाइम भी इतना मैनेज करना इजी नहीं होता। तो हर एक सेशन जो एक स्टूडेंट के साथ होगा दैट वुड प्रोलॉन्ग फॉर 30 मिनट्स। और ये चीज़ आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी। देन ये है कि आप कॉन्फिडेंट होगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आप डायरेक्ट मेंटोरशिप जब लोगे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उनसे डिफरेंट इंटरेक्शन करके अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। देन आप डिफरेंट प्रॉब्लम शेयर करके उस पर उनसे आप गो थ्रू ले सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो। देन टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एडवाइस एंड फीडबैक। ऑफ कोर्स जब आप इस सेशन में अपने किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में या किसी भी अपनी एक स्पेसिफिक डोमेन में कोई क्वेश्चन आंसर्स करोगे, अपनी चीज़ें डिफाइन करोगे विद द मेंटोर्स, तो दैट वुड बी हेल्पफुल कि वो आपको एक अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि राइट नो इन मार्केट माई पैनलिस्ट वुड अग्री कि अभी मार्केट में कोई भी इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर रहा। एंड अगेन it doesn't matter कि how much time it takes, but at the end, as we mentioned at very start के आखिरी लम्हे में हमें यही अगेन reaffirm करना है कि we have the mission to impart and to educate the best data skills
up to 100,000 students by 2025. And with that mission, of course, we are doing all these things. ओके, लेट मी ऐड वन मोर थिंग। अच्छा, जो Yeah. ये हमारे मेंटोरशिप है, वी आर पिकिंग रैंडम 15 जो कि मतलब हमारे फीडबैक देंगे, एंड दे आर टेकिंग पार्ट इन क्यूए सेक्शन, एंड दे आर लाइक इंटरेक्टिंग विद अस। हम सब हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने, दे हैव द फैमिली। सो हमारे पास थोड़ा बहुत मतलब जो टाइम बच रहा होता है, वी आर बच रहा नहीं होता, वी आर लाइक गिविंग आवर टाइम, पर्सनल टाइम टू यू गाइस, कि आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को बताएं कि चीज़ें वगैरह किस तरह से। दैट्स वेयर दैट इनिशिएटिव कम, कि यार अगर आप कुछ ही स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारे इस तरह से होते हैं कि दे वांट टू नो कि यार किस तरह से हम अपना पाथवे लेके चलें और क्या सीन लेके चलें। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, अनफॉर्चुनेटली दिस नंबर इज 15, बट इंशाल्लाह एज वी ग्रो वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास फिर ज़्यादा टाइम होगा, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मैनेज इट। एंड लास्ट थिंग के अगेन जो इसमें से रह भी जाएंगे, डू नॉट वरी, क्योंकि हमारे हर फ्राइडे क्वेश्चन आंसर्स के का टाइम होता है। वी हैव आवर फीडबैक फॉर्म, वहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछो, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि विद इन 1 वीक आपको हम उसमें वी कैन मेक अ वन वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, कि उसमें सबके क्वेश्चन हम डिस्कस करके हम वी कैन अपलोड ऑन यूट्यूब। तो उसमें आपको सबको क्वालिटेटिव फायदा हो रहा होगा, आपको पता लग रहा होगा कि यार बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हर बंदे के। तो आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, कुछ चीज़ें नहीं पता लग रही होंगी, डेट्स ऑल कि आपको एक बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी, इस तरह से आपको यू कैन एजुकेट अबाउट द प्रॉब्लम। सो डेट्स फ्रॉम माई साइड। लास्ट वेबिनार में हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि वी वुड बी गिविंग अवे द वेबिनार बैजेस फॉर द पार्टिसिपेंट हुएवर हैव टेकन आउट देयर टाइम, और उन लोगों ने वेबिनार्स अटेंड किए, और देन उनको हम लोगों ने वेबिनार के बैच सर्टिफाई किए या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वी हैव कम अप विद द जेनेरिक एक इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए हैं कि हाउ टू गेट योर वेबिनार बैच। एक्चुअली हमें फिल्टर आउट करना इजी हो जाता है इन चीज़ों से, कि जो लोग एक्टिवली हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे वेबिनार को ऑफ कोर्स जिसने अटेंड किया होगा, एंड वन हु पार्टिसिपेट्स इन द वेबिनार Q&A ने, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो भी हमारा इसके बाद होगा, उसमें भी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ऑफ कोर्स दे वुड बी अवार्डेड इन द बैच फॉर द वेबिनार। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के जो एक 60% इम्पोर्टेंस रखती है चीज़, वो फीडबैक फॉर्म है। फीडबैक फॉर्म पे हम ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं या एम्फेसिस हमारा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि यू गाइस टेल अस के व्हाट थिंग्स नीड इम्प्रूवमेंट, एंड व्हाट व्हाट ऑल ओवर द थिंग्स यू हैव जस्ट ऑब्जर्व थ्रू आउट द वेबिनार, कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप लोगों को समझने में हर बंदे का एक अपना लेवल या तरीका होता है। इफ़ यू गाइज नीड मोर इंसाइटफुल और मोर डिफरेंटली आप लोग चाहते हो कि हम चीज़ों को डिलीवर करें, तो ऑफ कोर्स वी वुड बी वर्किंग विद यू गाइज, एंड we would appreciate each and every suggestion. And last but not least, don't forget to mention us on LinkedIn to celebrate your badge. Of course, हम आपको badge share कर रहे होंगे, तो वो आप जब आपको emails आएंगे उस email में आपको और जो link दिया जाएगा उस पर क्लिक करने से आपके पास multiple options आएंगे। We would try कि हम एक short video बना के WhatsApp community में दे दें, ताकि you guys can easily post that onto your LinkedIn. कुछ लोगों को इशू आ रहा होता है, लास्ट टाइम भी कुछ लोगों के ये क्वेश्चन थे कि हम किस तरह से इसको अपने लिंक्डइन पे ले जा सकते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स कैसे उधर पेश कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड मूव ऑन सामा। वन मोर थिंग, अच्छा, जो फीडबैक लास्ट दफ़ा हमें रिसीव हुआ, उसमें यू गाइस मतलब कुछ लोगों ने मेंशन किया इट्स गुड और वेरी नाइस। सो दिस टाइप ऑफ फीडबैक्स इज नॉट मेकिंग लाइक मतलब सेंस के क्या अच्छा था किस तरह से। सो जब भी आप फीडबैक दें, यू शुड मेंशन कि यार क्या चीज़ स्पेसिफिकली सही थी, क्या चीज़ बेहतर की जा सकती थी, या ओवरऑल व्हाट योर थॉट्स के
हाउ दिस सेशन इज कंट्रीब्यूटेड, इसने मुझे कहाँ पे आगे कंट्रीब्यूट किया और मुझे किन चीज़ों पे क्लियर किया। तो डेट्स हाउ हमें भी समझ आ रही होगी कि यार किस तरह से चीज़ें इज वर्किंग डाउन टू मेंबर्स। एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू गाइस शुड कीप दैट थिंग इनटू योर माइंड कि हमने किस तरह से फीडबैक किया। एंड ओके, या नो इट्स योर टाइम, अभी आप लोगों का टाइम है, यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चंस। और ऑलरेडी जो हमारे क्यू एंड ए के सेक्शन में बॉक्स में चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पुट किए गए थे, वी शुड go स्टार्ट विद। towards the questions. ओके, So yeah, first of all, somebody just appreciated the sound. I don't think so कि किसी को ये क्यों लगा कि I sound like Indian. And yeah, अब नाम somebody is asking लैंग्वेज का। कि are we providing the practical exercises? So Sama, यस, address the सो question. जब मैंने वी ऑल स्टार्टेड डाटा सी को बैक इन 2023, तो हमारा यही मिशन था कि आपको सिंपल हम वो थ्योरी ना प्रोवाइड करें, हम आपको चीज़ें ना बताएं। तो मेन था कि प्रैक्टिकल आपको काम करके बताएं कि यार किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और प्रोग्रामिंग पूरी एंड टू एंड आपको बताई जाए कि किस तरह से होता है। और आईटी में मेन थिंग इज द प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, जिस पे हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई होप के महानूर योर आंसर, यू गेट योर आंसर। Yeah, next question is from Zainab Ashrat. She's asking कि sir nominal data एक बार explain कर दें again. So Osama, kindly explain it again. ओके, सो नॉमिनल डाटा इज विच जिसमें हमारे पास कोई रिलेशन ना हो। बेसिकली इट्स एनी नंबर, कोई भी नंबर आ सकते हैं और दे हैव नॉट सीक्वेंस, जबकि ऑर्डिनल डाटा में ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। दैट्स द मेजर डिफरेंस। Okay, somebody posted that from some chart कि 8.9 is the continuous data. Somebody is asking about the data यस, type of अच्छा, ordering. अब इन Yeah. डाटा के जो कंसेप्ट है, मतलब आई थिंक क्वेश्चन फ्रॉम जैनब अगेन, जो कंटिन्यूअस डाटा इज लाइक फ्रैक्शन, फ्रिक्शन में मतलब आपके पास 8.9 इज समथिंग सेंटीमीटर्स इन समथिंग, लाइक होल नंबर ना हो तो उसको हम कंटिन्यूअस करेंगे। कीप इट सिंपल, इनसाइड। Okay, यस, Asma Zahuri is asking what's insight. ओके, सो बेसिकली असमा पूछ रही हैं कि इनसाइट्स होती क्या है। इनसाइट सिंपली इज, यू कैन से डाटा विजुअलाइजेशन, के डाटा आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स द इनसाइट्स फ्रॉम डाटा। From Zainab Arshad again, she's saying that is perspective or prescribed related to descriptive? ओके, The types of data. Yeah. राइट, एक चीज है हमारे पास्ट में हो रही है, डिस्क्रिप्टिव इज रिलेटेड टू पास्ट, एंड प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्राइबल जो है इज इन फ्यूचर। तो टोटली दे आर द डिफरेंट, मतलब एक हमारे पास पास्ट के डाटा को डिस्क्राइब कर रही है, एक फ्यूचर के डाटा को डिस्क्राइब कर रही है। दैट्स द मेजर डिफरेंस। So one question for all, from many of the guys, बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि हम करियर स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? Give them just a short word for that. ओके, कैरियर स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों का कैरियर स्टार्ट हो गया अगर आपने, इफ़ यू अटेंड दिस वेबिनार, और आपको चीज़ें वगैरह बेसिक, क्योंकि वो स्टार्ट थिंक फ्रॉम डाटा कि डाटा होता क्या है। तो आई थिंक योर कैरियर स्टार्ट फ्रॉम टुडे। Yeah, exactly. Then Manuri is asking about the machine learning models and whether you can share the modeling process. क्या आप modeling process को share कर सकते हैं या नहीं? Of course, आप mentorship program में if you got selected or if you get some time and you post your question, तो briefly आप question and answer session में Friday को पूछ सकती हैं and we would be all available and to ओके, answer your problem. Yeah. राइट, वन मोर थिंग। अच्छा, फ्यूचर में हमारे पास नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे में भी हमारे पास मशीन लर्निंग पे पूरा हमारे पास वेबिनार आएगा। यू कैन आंसर, मतलब उसमें आप, आई थिंक होप कि आपका सारा मशीन लर्निंग के रिलेटेड सारी चीज़ें आंसर हो जाएंगी। आज का जो वेबिनार था वो कीप इट सिंपल, कि उसमें हमारे पास ज़्यादा जो फोकस था ऑन डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस। दैट्स द रीज़न, आई थिंक आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वेबिनार में। ओके, व्हाट इज पाइथन एंड एसक्यूएल? these both are the programming language। एक डेटाबेसेस से डील कर रही होती हैं, एंड अदर द पाइथन इज डीलिंग विद द सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप
You can deal with any type of data. Okay. Okay, they are asking from the recommended websites or the Right, portals. right, right. And yeah. Okay, next we have a question from any anonymous attendee. I have a question about the scope of data science, and again, yeah, that's the similar question. What's the question? Okay, somebody has a question कि मॉडल बिल्डिंग और एल्गोरिदम पे कोई कोचिंग है हमारी, so someone give the answer. Okay, so to keep it simple, we are starting our, you can say, end-to-end boot camp from next month, but probably we are working on it. We do not tell के मतलब उसका क्या duration होगा, कितना होगा. But if you are in our community, तो you can get the latest updates कि क्या क्या चल रहा है. So advice for you to stay in the community and interact with us. Once again, thank you so much for the participation. Oh, Mashallah Naveed, से, yeah. sorry, Akbar, it's like 46 and 47 questions. Yeah, yeah, I And know. I am just appreciating one participant. So she has been questioning a lot. So उनका ये question भी है कि हम कब से start करें? You already have told कि अब से start कर दें from right now. So next certifications, yeah, you are getting आप the लोगों को badges. webinars के लिए badges मिलेंगे, and later on for the boot camp and each specific course आपको certifications मिलेंगी. And we have a question from Muhammad Atiq. Osama, Okay. So he's over to you for asking the question. uh, Yeah. that he is from business management, BBA का student है, and he is interested to learn data analytics. तो he is interested के मतलब उसका background नहीं है, how he can goes into data analytics. So data analytics को जाने के लिए मैंने आपको बताया कि 5 steps हैं. You can learn start from Python, then you can move to SQL, further data analytics tool, then we have data visualization. मैं कोशिश करूंगा आई विल कीप माई आंसर्स सिंपल क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस 54 प्लस हो चुके हैं तो And yeah, once again, thank you so much. We have, of course, the global attendees, Olu Damilare. फ्रॉम Yeah, I नाइजीरिया आई know थिंक. him from LinkedIn. Thank you so much. So somebody asked, I have question, but they haven't posted. Okay. Yeah, sure. We have this question. What suggestion they are asking, Usama? So Ziafat is asking about suggestion regarding his data science track or what he should do first, data analytics or data science. तो आपको अगर डेटा साइंस में जाना है फर्स्ट यू स्टार्ट फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स. द रीजन कि आपको आप जब मेन कोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डाटा सही हो जाएगी ना यू कैन डू बेटर डाटा इंजीनियरिंग सॉरी डाटा साइंस. Okay, somebody suggested to go into details. Yeah, actually बात ये है कि हमारे पास ये एक घंटे का स्पैन होता है. इस घंटे के अंदर we have to cover all the things जो कि एक basics हैं, ये foundations हैं. And of course we are much more restless कि हम आपके लिए more detailed sessions भी लेके आएं. Of course in future we would take care of that. Yeah, somebody Mumraise, they have a question. I'm working as a data engineer, but I'm working on SIS, SSRS. Okay, yeah. But I want to transit in cloud data engineering and also in the data science. So how can I do it? So Osama, give it a अच्छा, shot. इफ यू आर वर्किंग एज अ डाटा इंजीनियर और आप एसएसआई और एसएसआर पे काम कर रही हैं ऑलरेडी एंड यू आर मूविंग टू क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग तो आई विल रिकमेंड गो फॉर एज्योर. रीजन के मार्केट में उसकी एक तो इन डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड इट्स इजी एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड्स एज कम्पेयर टू AWS. तो आई विल रिकमेंड टू गो फॉर एज्योर डाटा इंजीनियरिंग साइड. Let's fast up the things. We Yeah. have Again, Simal Naveed, I hope your question was addressed for the career path. Next question is from Irfanullah. Irfanullah, we told you about the practical examples. Yeah, we would be having those in our upcoming bootcamp. And we have Mustapha Shera.
sorry for pronouncing your name, Mustabshira Saad. Yes, practice on real world projects. Of course, it would be Exactly. beneficial. And then Kibriya Aziz, what would you suggest I did my graduation and if I go for? Yeah, Osama, ये question last time भी काफी पूछा गया था कि should we go for the masters in the data science, depending upon whatever we have the degree background already. If So you have kindly make clear. Yeah. if you have time, if you have money, if you have like extra vela time, तो I recommend कि आप डिग्री करें. इज नॉट डिपेंड कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट. मैंने खुद नहीं किया, तो आई विल रिकमेंड कि आपका जो मास्टर है आप करें. इज गुड इफ यू वांट टू डू लाइक दैट. तो इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर कैरियर. यू कैन स्टार्ट इफ यू आर इवन यू आर डूइंग बीबीए. अगर किसी ने बीबीए किया है, ही कैन इवन स्टार्ट. बट इट्स गुड इफ Yes. यू आर डूइंग Yeah. समथिंग. इज गुड. So next, Mohammad Atiq asked this same similar question we addressed. So now, uh, Adisha Wahid, she's asking again. Okay, she's asking about the missing or incomplete data. So give it a shot quickly, please, ओके. and let's move. जो मिसिंग और इनकम्प्लीट डाटा होते हैं, वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स. जहाँ पे मैंने आपको एक बताया बीच में कि इफ़ वी हैव द आउटलायर्स, इफ़ वी हैव लाइक मिसिंग डाटा, तो उसको हम स्टैटिक टेक्निक से डील कर रहे होते हैं. बेसिकली जो अगर आपको मैं कीप इट सिंपल रखूँ, तो वहाँ पे आ रहा था मीन मीडियन मॉड. आपके डाटा का मीन मीडियन मॉड लिया जाता है और उसके साथ आपका जो डाटा रिकमेंड करते हैं कि मतलब कौन सा उसके लिए सही रहेगा, तो आप वो उसमें एडजस्ट कर रहे होते हैं मिसिंग वैल्यूज में. Okay, next we have Uzair Mirza. He's asking again for is it necessary to learn the machine learning or just go for the ML without learning analysis? It depends. It depends upon whatever the path you choose. Depends upon the roadmap you choose for that, of course. And then Ibrahim Zakaria from Nigeria. Thank you so much, Ibrahim, for taking part. I'm interested in predictive modeling and want to research it for my PhD research. Please advise me on the areas to concentrate. Okay, Zakaria, we would also recommend you to take part in the one-to-one I take mentorship program as well. And I'll yeah, quickly, Osama, please answer this. अच्छा, ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है. बेसिकली रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ योर डाटा, और आप उसको किस तरह से डील कर रहे हो, और Osama, आपने sorry क्या to प्रेडिक्ट interrupt करा. you. He's from Nigeria. So yeah. Okay, so basically my recommendation is to start with your problem statement and understand your data, what your data is telling about, and about what type of problem you are going to solve. So these are the most important thing before doing any prescriptive modeling. And we have like further we have different type of techniques in machine learning to do that thing. Okay, next, Usha, sir, if I would have. Okay, yeah, we hope we have addressed your question already. Ukasha Faruqi, I guess. I heard Python nowadays is high level. Okay, skipping the beginning code. Yeah, Kasha, you should go for the intermediate or advanced course or वन whatever मोर वन tutorial you are वन following. मोर Yeah. रिक्वेस्ट कि अभी वी हैव लाइक 100+ क्वेश्चंस, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 40+ आंसर कर दिए हैं, और स्टिल वी हैव 60+. अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल किसी का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ट्राई टू कि एक दफ़ा ही पूछ लें, बिकॉज वी हैव टू लाइक कि कोई रह ना जाए. दैट्स द रीज़न. Yeah, Olovo from Nigeria. Yeah, thank you so much for participating. They are asking about the giveaway. Of course, you would be contacted for the giveaway. Osama, we should keep that noted. If yep, And the process of yeah, getting badges is simple. Just fill the feedback form, which we have. We will share the link in WhatsApp group or community. You can simply go and just give your feedback, and then we can, like, in 2 and 3 days we will send you the badge on your email, like that.
Miko, thanks for your appreciation. Yeah, Zainab Rashid is asking after BS Math, we will do the masters. Yeah, okay. That depends. Again, Usama, you have answered the question. Yeah, so Ikra is asking, sir, is data analysis have great impact over the BBA, Bachelor's of Business Administration or career related business? Uh, Okay, a business data analysis for data analysis particularly for BBA students, multiple students have asked about that कि data analysis हमें करनी चाहिए. That depends upon your interest. We have the only core mission कि हम आपको different चीज़ों के बारे में बताएं for the foundations. Then you choose your interest and of course you can choose for that. Then we have Mamuna Pervez. Yeah, about the classes, inshallah, of course, from starting from August, we are starting our boot camp and और मैं the थोड़ा सा live classes. करता हूँ, आई Yeah, थिंक आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें. yeah, अच्छा, sure. yes, Over to we you. have question from Fatma. He is asking about Kaggle का. Kaggle का बता दें. Kaggle आप जाके सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे. It's a data science, data analytics platform, and where you can learn about further प्रोजेक्ट्स के क्या होते हैं. फर्दर द क्वेश्चन फ्रॉम मास के व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स. प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स आर लाइक 30% ऑफ whole data analysis part where you are doing using these techniques. You are doing data analysis और आप अपने जो मिसिंग डाटा है, नल्स वैल्यूज हैं, यू आर डीलिंग विद दैट थिंग. ओके, गिव मी अ मिनट. Okay, then we have next question. Is any remote job available? Yep, we have the couple of remote jobs available in data analysis and data science. Sure, Asma, we will in upcoming webinars, we will discuss about projects, building portfolios. We will arrange one specific webinar for that, how to make that thing. There is question from Hina. He's asking about the level of Python required to start data analysis. You can start your data analytics from simple Python, then you can go into pandas. If you learn simple basic pandas, you can easily excel in data analytics. Okay, we will. The question is to have one webinar on real project. Sure, we will in upcoming days. We will do a real project in one of webinar because अभी जो हमारे सारे चल रहे हैं, these all the our target audience is beginner and intermediates. They are the reason कि हम projects वगैरह discuss नहीं कर रहे. We are trying to keep it simple. Diagnosis analytics में we are doing like diagnostic thing कि हम कोई चीज diagnose कर रहे होते हैं based on your past data. Sir, one person is asking about what is the role of cloud computing in data analytics. Simple, अगर मैं आपको कहूँ तो we have like हर अब in future we have like all the everything is on cloud, तो आपको cloud आना चाहिए. That's the simple. तो you can start from data analytics. Further you can move on. मतलब आप कोई भी cloud सीख लें, सारे तकरीबन सेम है. तो यू कैन डू दैट थिंग. ओके, जो मेंटोरशिप है इट्स टोटली लाइक बेस्ड ऑन योर फीडबैक्स. जो आप लोग फीडबैक दे रहे होंगे, हमारे पैनलिस्ट जो होंगे, दे विल रेंडमली सेलेक्टिंग 15 गाइज. मतलब उसमें रैंडम वी आर पिकिंग द रैंडम गाइज. और अगेन जो रह जाते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन फ्राइडे क्यूए. तो वहां पे भी यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. एंड in meanwhile you can start with Python. Okay, Ushna is asking about machine learning project, about Jupyter and Colab. Basically, these tools are ये दोनों editor हैं for doing data analytics, coding, Jupyter और Colab. I will recommend Colab क्यों use करें because it's online. आप कहीं पे भी use कर सकते हैं, किसी के साथ share भी कर सकते हैं. It's good habit to keep things online. Fatma is asking, kindly reply to my message. I think आपको कोई अगर है तो आप पूछें. ओके, क्वेश्चन फ्रॉम फातिमा. डाटा क्लीनिंग एंड डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स क्रिएटेड. जब वी विल हैव वन वेबिनार रिगार्डिंग डाटा विजुअलाइजेशन. एक हमारा ऑलरेडी वेबिनार हो चुके हैं डाटा विजुअलाइजेशन पे.
So you can get on YouTube. Anwar, can you can you go down and start? आप start करो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक ओवरव्यू कर लेता हूँ और जो क्वेश्चंस हमारे Yeah, sure. Okay. Next, we have Maz. He's asking which platform is best for learning SQL. You can opt any of the online from YouTube. There are multiple courses. If you don't go for the course, you can get a lot of videos, short clips for getting insightful things for SQL, of course. Okay. Could we use Mongo instead? Hamza is asking, we can we use Mongo instead of any other database? Mongo. SQL की जगह देखें, SQL Okay. क्यूरी लैंग्वेज है. It doesn't mean कि वो एक database management system. Mongo is a database management system. So basically you can use whatever the database management system you may use. And again, Mongo is a complete framework providing you all the things, its own query structure as well. So, Sama, can you share the question tab? Because here I am not. Okay, can you see it now? If you click on QA part, if you go down, you have a QA part. Actually, I have only the latest questions here. Okay, okay. मैं start करता हूँ. I have Yeah, you the start with it. Yeah. okay. The Mariam is asking how to become data analyst. The same question and what type of Python we required. You can start from a beginner Python and then मतलब अगर basic Python start करें and then you can move to data analyst. Shirazi have a question. In data analytics, we need advanced programming. Okay. हमारे आई हैव लाइक ऑलमोस्ट मैंने 5 से 7 years का आई हैव एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री. तो इन स्टार्ट वी ऑलवेज मतलब अभी भी हम वी आर ज़्यादातर हमारे लोग इंटरमीडिएट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज एडवांस चीज़ें कभी यूज़ ही नहीं होती. आप अगर आपको बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग है, इफ़ यू हैव द बेसिक क्लैरिटी इंटरमीडिएट, दीज आर द थिंग्स विच आर यूजिंग इन इंडस्ट्री और दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क. So you can start from basic and then you can upskill yourself to intermediate and then you can learn advanced things. Javiria has a question. What ethical consideration should data analysts keep in mind when handling sensitive data? Okay. So when you are dealing with sensitive data, you should you should know about their different type of every country have different type of their policies to dealing with their data. So if you are dealing with any personal information like numbers, their personal details, so you should like keep in for example, if we have the password, you can encrypt that thing and keep it in your DB like that. Then one question, I'm a medical student and can you suggest me any course? I think it's not making sense. Yep, there's a couple of sources. If you are interested in data, then you can start from Python and SQL. One repeated question about feedback. Feedback जो form होगा, I will share in group and वहाँ पे share हो जाएगा and then you can give the feedback in community. Like form को fill कर लीजिए और आपका feedback आ जाएगा हमारे पास. Okay, then we have next question from Zurez. He's asking about the difference or role. I think it's advanced level question. Data architecture versus data governance. अब डाटा आर्किटेक्चर में जो मेन चीज होती है, द डाटा आर्किटेक्चर इज आर्किटेक्टिंग द होल थिंग फॉर द डाटा टीम, वाइल द डाटा गवर्नेंस इज ओनली ऑन द गवर्नेंस साइड, जहाँ पे आप अपने डाटा को गवर्नेंस काइंड ऑफ यू कैन प्रोवाइडिंग द गवर्नेंस अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को आप गवर्नेंस प्रोवाइड करते हो. वहाँ पे आर्किटेक्चर का काम नहीं आता. आर्किटेक्चर इज समथिंग आप कुछ डिजाइन कर रहे हो, एंड टू एंड पाइपलाइन डिजाइन कर रहे हो. Okay, then next question from Noor. She's asking, she has a healthcare background. You can, yep, or she is asking about advice. Yep, you can learn from, you can learn data science and you can start from Python, SQL, and then move on. Then we have a question from Hina. She is asking about libraries. Of Yep. So you to start your career in data analytics, you can start from Pandas, NumPy, and then you can move to machine learning thing. Yeah, Sama, that's
I guess we are cutting short of time. And of course, for the rest of the questions and answers, we have planned already that we would be posting the question answers video over multiple platforms. Basically, आप YouTube पे आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी. And other than that, we have our WhatsApp community, and we have the presence on all over the platforms, जिसमें हमारे पास Facebook, Instagram, TikTok है, LinkedIn है. वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि आपके जो बैजेस हैं, आपकी जो सर्टिफिकेशंस लेटर ऑन होंगी, यू गाइज हैव टू पोस्ट ऑन योर लिंक्डइन. आप लोग लिंक्डइन पे उसको पोस्ट करेंगे. और काइंडली डोंट फॉरगेट टू मेंशन डाटा सीको. We are again reaffirming our mission that we are on the mission to empower and educate 100,000 students by the end of 2025. Thank you so much, Osama Hamid. Thank you so much, Naveed, Tariq, and our other panelists, Munib Ahmed. We had a great time with you all, audience. Or inshallah, we would be addressing all of your questions. Whatever we have addressed or left, we would again address that by creating a video, an insightful video for that. And until next time, we thank you all of you, and we expect that each and every day you guys learn and prosper ahead. That's from my side. Sama, if you have any words, last few Uh, words. Yeah. Sure. Thank you, Naveed, for your kind words. And I'm really thankful for providing the opportunity to community जहाँ पे वो हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकें, जहाँ पे हम उनके डिफरेंट क्यूरीज कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें. एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, कि आप लोग आई होप कि इट्स रियली क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. एंड बाय फ्रॉम माय साइड. टेक केयर. Thank you so much once again. Naveed, if you have last few words, you may say. Am I audible? Yeah, you're audible. So that was a great webinar. Thank you so much for coming, and inshallah we're doing much more for our community, for our data seeker community. So that's all from my side. So see you guys in next webinar, inshallah. Inshallah. Thank you Okay, so much. inshallah. Take care. Take care. Have a good evening. Whatever time you have, have a good time. Take care. Bye bye. Bye.